اور جب جنگ شروع ہو رہی ہے ایک امام کے ایک ساتھی ہے، ایک اصحاب میں سے، امام کے اصحاب میں سے ایک اصحاب ہے جن کا نام جناب زہیر ہے، وہ کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں اور کربلا کے میدان میں جانے کے بعد سے یزیدیوں سے لڑتے ہیں، جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آنے والا ہے انہوں نے اپنے دوست حضرت مسلم بن اوسجہ کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد سے کہا، اے میرے دوست مسلم بن اوسجہ، میں نے جس طرح نبی و آل نبی پہ جان دی ہے اسی طرح تم بھی ضرورت پڑے گی تو نبی و آل نبی پہ جان دینا۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا، میرے دوست میں وعدہ کرتا ہوں کہ دامن حسین میرے ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اب آؤ دیکھو، مسلم بن اوسجہ امام عالی مقام کے نام پہ وہ بھی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اور امام جب مسلم بن اوسجہ کی شہادت ہو رہی ہے امام دوڑ کے گئے ہیں، حضرت مسلم بن اوسجہ کو اٹھایا ہے، اپنے خیمے کے قریب لائے ہیں، امام کے زانوں پہ مسلم بن اوسجہ کا سر ہے اور مسلم بن اوسجہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور بلانے کے بعد سے کہا، اے میرے دوست، میں جس طرح قربانی دیا ہوں امام حسین کے نام پہ، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تو کیا کہنا چاہتا ہے میرے دوست، تو زندگی کا آخری وقت ہے تو دنیا سے جانے والا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میری ایک بیوی ہے اور ایک بچہ ہے جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس کا خیال رکھا جائے گا۔ تو امام عالی مقام کے سامنے ان کے دوست حضرت مسلم بن اوسجہ کہتے ہیں، یہ نادان سن، تم میرا دوست ہے لیکن تو نہیں جانتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے نبی و آل نبی پہ جان دی ہے اسی طرح تم کو بھی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت مجھے بیوی یاد آ رہی ہے نہ بچہ یاد آ رہا ہے، تم کو ضرورت پڑے گی نبی و آل نبی پہ جان دینا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا کربلا کے میدان میں امام عالی مقام کیا دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ننھی سی تلوار لگا کے کربلا کے میدان میں بھاگ رہا ہے۔ امام عالی مقام کی نظر پڑی، آپ نے کہا، اے میرے اصحاب ذرا جلدی سے اس بچے کو پکڑو، وہ کس کا لال ہے جو کربلا کے میدان میں بھاگ رہا ہے۔ اتنا سننا ہے، امام کے دوستوں نے اس بچے کو پکڑا ہے، امام کے قریب لائے ہیں۔ امام عالی مقام نے اس بچے سے پوچھا ہے، اس کی عمر 9 یا 8 سال کی ہے، اور سے سنیے گا، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کے اندر بھی دل ہے، ایک دل ہے اس میں اسلام کی محبت ہے، آپ بھی بیٹے سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس بچے کا جواب سنو مسلمانوں، آپ کا ایمان پیدا ہو جائے گا۔ امام نے کہا، اے میرے لال، تو کس کا لال ہے جو کربلا میں مقتل میں بھاگ رہا ہے؟ تو انہوں نے، بچے نے جواب دیا، اے امام میں جانتا، میں بتاؤں میں کس کا لال ہوں؟ کہا کہ تم کیوں جا رہے ہو کربلا کے میدان میں؟ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا میری ماں نے سجا کے مجھے کربلا میں بھیجا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ نبی پہ اور آل نبی پہ جان دینے جا رہا ہوں۔ کہا تم کو معلوم نہیں ہے ادھر تیر چل رہے ہیں، یا تم کو معلوم نہیں ہے ادھر تلوار چل رہے ہیں، یا تم کو معلوم نہیں ہے ادھر بلم چل رہا ہے، یا تم کو معلوم نہیں ہے ادھر برچی چل رہی ہے، یا تم کو معلوم نہیں ہے وہاں گھوڑوں کے ٹاپوں سے شمالیاں روڈی جا رہی ہے۔ امام عالی مقام نے اس بچے سے کہا ہے، امام کے دامن کو تھام کے وہ بچہ کہتا ہے، امام میں جانتا ہوں وہاں بلم چل رہے ہیں، امام مجھے یہ بھی پتا ہے وہاں تیر چل رہے ہیں، مجھے امام یہ بھی پتا ہے وہاں تلوار چل رہے ہیں، امام مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہاں جمانیہ پامال ہو رہی ہے، لیکن امام اگر ان کو ناز ہے، اس بچے نے شعر کہا ہے، اگر ان کو ناز ہے نیزہ و شمشیر پہ، اگر ان کو ناز ہے نیزہ و شمشیر پہ، تو پھر ہمیں بھی ناز ہے پھر نعرہ تکبیر پہ۔ نعرہ تکبیر، اگر ان کو ناز ہے نیزہ و شمشیر پہ تو ہمیں بھی ناز ہے پھر نعرہ تکبیر پہ۔ اس بچے نے بات کہی ہے، امام عالی مقام پوچھتے ہیں آخر بتا تو صحیح تو کس کا لال ہے؟ اس بچے نے کہا، امام میں بتا دوں میں کس کا لال ہوں؟ امام نے کہا، ہاں میرے لال تو بتا دے کس کا لال ہے۔ اب اس بچے کا جواب سنیے، اس بچے نے کہا کہ جس باپ کا سر آپ کے ساموں پہ ڈل گیا ہے، میں اس مسلم بن اوسجہ کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کی روح یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا
दस्ते दुश्मन में, शेर सुनिए, शेर सुनिए मौसाफिर साहब, तवज्जो। दस्ते दुश्मन में वफाओं ने कदम रखा है और प्यासे असगर ने शहादत का भरम रखा है। दस्ते दुश्मन में वफाओं ने कदम रखा है और प्यासे असगर ने शहादत का भरम रखा है। करबला 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 इश्क की वो आखिरी मंजिल है जहां एक सजदे ने इबादत का भरम रखा है। सुभान अल्लाह, वो आखिरी मंजिल है जहां भरम रखा है। जरा आप देखिए, एक ही बात दिख शहादतों पे शहादतें हो रही है और इमाम के दीवाने, इमाम के जानसार, इमाम के नाम पे कुर्बानी देते हुए करबला के मैदान में चले जा रहे हैं। इमाम आली मुकाम के जब दीवानों ने कुर्बानियां पेश की है, अब इब्न ज़ियाद और शिमर लईन और खूली बिन यजीद ने प्लान किया है और प्लान करके ये कहा कि तुम जब तक इमाम के साथी और असहाब मारे जा रहे हैं तब तक इमाम यजीद की बैत कबूल नहीं करेंगे जब तक उनका बेटा मारा जाएगा। जब उनकी औलादे मारी जाएगी तो हो सकता है उनका इरादा बदल जाए। इमाम ने कहा तो मेरे बेटे को देखना चाहते हो? उसके पहले इमाम ने खेमे के अंदर नजर डाली, सकीना झूले में बेहोश पड़ी हुई है। और गौर से सुनिएगा, अगर सकीना झूले में बेहोश पड़ी हुई है, सकीना जब उठती है बेदार होती है और अपने चचा अब्बास के करीब आके कहती हैं कि मेरे चचा मुझे पानी नहीं पिलाएंगे, मेरे होंठ सूख गए हैं। हजरत सकीना इमाम हुसैन की बेटी है। आप अब्बास अलंबरदार इस हुसैनी फौज के कमांडर, चीफ इन कमांडर से बात कहती हैं। हजरत अब्बास अलंबरदार ने कहा मेरी बेटी तुझे प्यास लगी है, मैं जाता हूँ दरियाए फुरात पे और पानी लेके आता हूँ। इमाम आली मुकाम के शेर हजरत अब्बास अलंबरदार ने मशीदा लिया है और घोड़े पे सवार होते हैं और घोड़े पे सवार होकर के 1000 का लश्कर हजरत अब्बास अलंबरदार ने देखा। 1000 का लश्कर दरियाए फुरात को घेरावा किया हुआ है, लेकिन अली का शेर है कि आप देखिए जिसके चेहरे को देखने के बाद से दुनिया हैरत में पड़ जाती है। अब्बास अलंबरदार हुसैन का शेर जब दरियाए फुरात के करीब पहुंच करके दरिया के अंदर अपना घोड़ा डालते हैं और घोड़ा डालने के बाद से आपने सोचा मस्कीजे को पानी से भरा है और पानी को भरने के बाद से आपने सोचा कि मैं पानी पी लूं, तब तक उसी पानी के चिल्लू में हजरत सकीना की सूरत नजर आती है। सकीना ने कहा ए मेरे चचा, आप नाना की वो हदीस भूल गए हैं, इसमें नाना ने ये कहा है कि पहले छोटों को खिला लो पिला लो तब खाना पीना। हजरत अब्बास अलंबरदार ने जब ये बात करी, आलम तसव्वुर में आपने पानी को जमीन पे डाल दिया है और जमीन पे डालने के बाद से अब इमाम हजरत अब्बास अलंबरदार ने अपने घोड़े की तरफ देखा है और घोड़े को देखा है। देखने के बाद से कहते हैं मेरे गाजी तू तो पानी पी ले। घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। घोड़े ने एक जवाब दिया है। इमाम हजरत अब्बास अलंबरदार से कहा है कि ए मेरे घोड़े, जब मेरा आका पानी नहीं पी सका तो मैं क्यों पानी पीऊंगा? हजरत अब्बास अलंबरदार पलट के घोड़े पर सवार होते हैं। तब तक सीधी फौज के हजारों ने उन पे तीर की बारिश की है। एक बाजू करता है अली के शेर का, दूसरे बाजू से आपने मशीजा संभाला है, दूसरा बाजू भी करता है। सक्काए सकीना ने अपने उस मशीजे को अपने दांतों में दबा लिया है और सोच रहे हैं कि मैं खेमे के करीब पहुंच के सकीना की प्यास को बुझा दूं। इतना सुनना है तब तक देखिए मस्जिद में एक नादान यजीदी ने तीर चलाई है, मस्जिद में भी छेद हो जाता है, पूरा पानी जमीन पे गिरा है। लेकिन हाय रे अब्बास तेरे हौसले को सलाम। देखो आप कितनी कोशिशों के बाद से अब्बास अलंबरदार ने दरियाए फुरात पे अपना घोड़ा डाला है और पानी मस्जिद में भरा है। इसी को देखते हुए शायर कहता है कि निकले मैदान में आओ देखो अब्बास, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। लुट गया है जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। सक्काए
सकीना ने हजरत सकीना के लिए अपने जान की कुर्बानी पेश की है। और आपने अली के अब यजीदियों की तरफ से आवाज गूंजती है, हुसैन अपने भाई के लाश को आप अपने कंधे पे उठाओ, इमाम आली मुकाम है, आपने लाश को उठाया है। और अब्बास, हजरत अब्बास की लाश को खेमे के करीब ला के रखे हैं। एक बात दीगरे बड़ी मुख्तसर में बड़ी शहादतें हैं, लेकिन मैं शहादत की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ। आओ जरा देखो कि हजरत अली अकबर हैं, दौड़ के आते हैं और कहा कि बाबा मुझे रखने जाने की इजाजत दी जाए। अब्बास, हजरत अब्बास, चाचा अब्बास शहीद हो चुके हैं। अली अकबर ने जब इजाजत मांगी है तो आपने कहा कि तुझे पाला है तेरी फूफी ने, तुझे फूफी से जाके इजाजत देनी पड़ेगी। हजरत अली अकबर अपने फूफी ज़ैनब के करीब जाते हैं और जाने के बाद से आपने इजाजत तलब की है। लेकिन देखो हजरत ज़ैनब ने सीने पे पत्थर रखा है और हुसैन के शेर को अली अकबर को रन में रवाना किया है। अली अकबर जब करबला के मैदान में पहुंचते हैं, गौर से सुनिएगा, अली अकबर जब करबला के मैदान में पहुंचे हैं, हज़रात देखिए तमाम यजीदियों ने अपने अपने खंजर को, अपनी तलवारों को जमीन पे डाल दिया है। यजीदियों ने कहा कि हम अली अकबर से, हजरत हुसैन से, उनकी औलाद से तो जंग कर सकते हैं, मैं अपने नबी से जंग नहीं कर सकते हैं। हज़रात देखिए अली अकबर की सूरत अल्लाह के रसूल की सूरत से मिलती थी। यजीदियों ने कहा कि हम नबी से जंग नहीं करते हैं। तब तक शिमरे नबी और यजीदियों ने कहा ये नबी कहाँ से नजर आ रहे हैं, ये शबीह नबी हैं। अली के शेर ने, अली के शेर ने जब यजीदियों को ललकारा है तो आओ देखो शायर कहता है कि निकले मैदान में सचकर अली अकबर जिस्म, निकले मैदान में सचकर अली अकबर जिस्म। अरे जान दुश्मन के उन्हें देख के तर्राई है। अरे क्यों तर्राई है, ये अली अकबर थे, पैगंबर के मुसाफिर, बिल्कुल लोग दुश्मन समझे कि ये तस्वीर नबी आई है। करबला के मैदान में अली अकबर ने भी अपनी जान की कुर्बानी पेश की है। करबला के मैदान में एक एक शेर अपने जान की कुर्बानी पेश कर रहा है। ये वही करबला है, ये वही शहीद है जो एक एक बात दिख रहे कुर्बानियों पे कुर्बानियां पेश करते चले जा रहे हैं। अभी तब तक यजीदियों ने आवाज लगाई है, हुसैन हुसैन आओ। अब अपने पाले हुए गोद कलियल जवान, 18 साल के कलियल जवान अली अकबर के लाश को उठाओ मुसलमानों। हज़रत इमाम आली मुकाम दौड़ के करबला में पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद से आप जब पहुंचते हैं करबला में, पहुंचने के बाद से के सामने आपने अपने बेटे की लाश को उठाया है। खेमे के करीब आते हैं, कहा बाबा बड़ी तकलीफ हो रही है, बाबा बड़ी तकलीफ हो रही है। बाबा ये सीने में एक नेज़ा, गौर से सुनिए, सीने में एक नेज़ा छुपा हुआ है और बाबा इसको निकाल दीजिए, ये सीने में बड़ी तकलीफ दे रहा है। अली अकबर ने जब ये बात कही है, मुसलमानों जरा सोचो, आप भी औलाद वाले हो, आपको भी अल्लाह ने औलाद दी है। अगर आपका बेटा जमीन पे गिर जाता है, अगर आपके बेटे को कोई किडनैप करके लेके जाता है, बाप की मोहब्बत जोश मारनी शुरू कर देती है। लेकिन कुर्बान जाओ नबी वाले नबी पर, कुर्बान जाओ हुसैन की ज़ाते मुक़द्दस पर। ये 18 साल के करियल जवान बेटे के आखिरी वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं, लेकिन हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन की शुजाअत को सलाम। अली अकबर ने कहा बाबा इस तीर को निकाल दीजिए, बड़ी तकलीफ हो रही है। इमाम ने जब अपने बेटे के सीने से उस तीर को निकाला है तो जवानों खाली तीर बाहर नहीं आता है, बल्कि तीर के साथ, तीर के फल में इमाम हजरत अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ जाता है। वो इम्तिहान की घड़ी है। आखिर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इमाम आली मुकाम ने ये सामने क्या मामला है? कोई भी तो बच्चा कहना चाहिए, किसी भी असहाब को कहना चाहिए, किसी भी बच्चे को कहना चाहिए बाबा मान लीजिए जीत की बैठ, बाबा कबूल कर लीजिए जीत की बैठ, जीत के हमें हम मिला दीजिए बाबा, लेकिन कुर्बान जाओ इमाम के खून पे। एक एक करके अली अकबर ने जान की कुर्बानी पेश की है। लेकिन इमाम आली मुकाम का शेर अली अकबर कहता है बाबा आप
इसी सूरत में यहाँ तक कि अली असगर को भी कुर्बान कर दे, कासिम को भी कुर्बान कर दे, लेकिन यजीदियों के हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने अगर यजीदियों के नाम ना मिलाया है तो सुबह क़यामत तक जो हुसैनी होगा वो यजीदियों के नाम ना मिलाता रहेगा। और हुसैन के हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। हज़रात, ये है अल्लाह के और उसके रसूल के दीन पे अमल करने वालों की बात। आइए, चूंकि शहादतें बहुत है, हल्की सी शहादत